Okay. Only music is playing. Okay. Okay. Now am I audible and visible? Can I get a quick thumbs up from everybody? Thank you so much. And please switch on your camera. सब लोग अपना कैमरा ऑन कर ले. Let's make it very, very interactive. And let me know who I am speaking to. Thank you so much for switching on your cameras. हम लोग आज शाम को किस लिए इकट्ठा हुए हैं? What have we gathered here for? For some very important issues, some health issues. Yes or no? Indira ma'am, Yashoda ma'am, can I? Thank you so much. So, क्या है आपकी प्रॉब्लम जिससे आप जूझ रहे हैं and you're not able to find any solution? Can you please list it down in the chat box along with your name and number? Any kind of muscular pains, neuro issues, degeneration, which is a very, very important part of our aging process. कुछ भी ऐसा जो आपके लाइफ में हो रहा है, क्विकली उसको लिख डालें. So what happens? Every passing year, the problems are becoming more and more. So what is the reason? जो problem आगे retired लोगों को होता था, today we are seeing in the youngsters, and that is actually alarming. Why? Because we are eating the best kind of food, we are having all luxuries, but still we are not in the best of health. So what could be the probable reason? क्या कोई बता सकता है participants में से क्या कारण है कि सब कुछ बेहतर होते हुए भी हम लोग अपने best of health में नहीं? Anybody from the participants? Why is it that the suffering is increasing more and more? Anybody from the participants? क्या कोई मुझे बताएगा कि problems ज़्यादा क्यों बढ़े जा रहे हैं? When we are eating the best kind of foods, we are having the best kind of facilities, thanks to technology. Nobody from the participants would like to hear some replies? Okay, तो क्या है कारण? The environment, the chemical intake that we are doing knowingly or unknowingly, सब कुछ का impact हमारे शरीर पे हो रहा है, right? So अब हमें क्या करना है ताकि हम अपने problem से बाहर निकलें? How many of us actually want to come out of our problems naturally? कितने लोग नेचुरल प्रोसेस में अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं? Please write in the chat box how many people actually want to come out of their problems. Okay. So a lot of me's, all of us, stressful life, muscle stiffness. अब quickly अपने problems भी लिख डालिए. तो हमें क्या करना पड़ेगा to come out of our current problems? We have tried a couple of therapies, but they have all worked temporarily. Yes or no? Yes or no? तो अब हमें कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा, some natural process, so that we can come out of our problems naturally, working on our own internal system. So if I have your permission, I would like to share the screen to give you an insight as to how you can start working on your body. So do I have your permission? Give me a thumbs up. A quick thumbs up. Thank you so much.
Okay. Himanshu, is the screen visible? Himanshu, is the screen visible? Ashwini, is the screen visible? Yes, Okay. yes. Ashtang Chikitsa online therapy for neuromusculoskeletal problems. Namaskar, I welcome you all to the Ashtang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from, but have not yet found any permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments. So Ashtang Chikitsa can also be used as a preventive method so that you keep your internal organs functioning at their optimum levels. तो अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे घुटने का दर्द से इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शनिंग का क्या रिलेशन. So when we further our webinar, you will understand how the internal organs are actually connected with your localized pain. So now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtang Chikitsa to address the structural issues of a human being. तो हम क्या बोलना चाहते हैं जब हम बोलते हैं structural issues of a human body? The musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way. That's our purpose at Avisa Healing and Fitness, a profound way of addressing the aspects of a human body. Who is this webinar for? For people who are tired of temporary treatments and are looking for natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. Reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtang Chikitsa, freedom from medicine and pain. So Swamiji will talk about the Ashta Sharir or the 8 softwares in your body. Now what are those? Shrishti Sharir, Garbha Sharir, Dosha Sharir, Marma Sharir, Pramana Sharir, Sankhya Sharir, Prakriti and the Vikriti Sharir. वैसे तो हर सॉफ्टवेयर का अपना अपना functions होता है, but when we talk about neuromuscular health issues, we mainly focus on the Prakriti or the Vikriti Sharir. Prakriti yani the natural ways of rejuvenating our body. Vikriti yani ki degenerative process of the body as we age. So Ashtang Chikitsa can heal. Of course, the list goes on and on, but these are the current problems that the participants we see are currently facing. Knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine-related issue, slip disc, disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, or the nerve issue. So, of course, those were the very, very common problems. Now, let's come to the
more chronic problems that we are seeing in today's participants: muscular dystrophy, multiple sclerosis, TMJ disorder, varicose veins, psoriatic arthritis, Ehlers-Danlos syndrome, spinal stenosis, myasthenia gravis, Bell's palsy, cervical spondylitis, carpal tunnel syndrome, ataxia, Guillain-Barré syndrome, ADN, Alzheimer's disease or dementia, glaucoma, vertigo, ankylosing spondylitis. So let's hear from Swami Raj Vibhuji. उन्हें हमें क्या बताना है, कैसे हम निजात पा सकते हैं अपने current problem से. Thank you so much for listening to me patiently. I'll just tell you how we are going to proceed in the webinar. इसके बाद आप सुनेंगे recorded video of Swami Raj Vibhuji, where he will be explaining how the body works and how you yourself can master the technique of coming out of your problems without any pills or any kind of external intervention. Then we will be inviting somebody live who's been a current participant and has found benefits in Ashtanga Chikitsa. Of course, we will share the program details after that. Last but not the least, Swami Raj Vibhuji himself will be coming live to answer your questions, of course, within the limited time, as many as possible. So quickly लिख डालिए आपके questions along with your name and number. Thank you so much. Over to Ashwini to share the video. Namaste. Namaskar, ma'am. Give me a few seconds. Sure. So let's start. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? No. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, डीजनरेशन इज हैपनिंग. दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी, लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है. द डॉक्टर विल स्टिल से
देयर इज अ लोकलाइज्ड प्रॉब्लम एट द नी, वो करेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, एंड ही वुड ट्राई टू सी द प्रॉब्लम देयर इटसेल्फ, वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा। बट डू यू नो व्हाई इन्फ्लेमेशन हैपन इन योर बॉडी? व्हाई इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है। If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So, क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So, even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला। So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहाँ पे? आपके जॉइंट में प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now, Rachana ji said after menopause, osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर brittle हो गई, कमजोर हो गई हैं, porous हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtanga चिकित्सा. Now in the last 50 years, पिछले 50 साल 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtanga Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और Ayurved kalachar, in yoga kalachar, there is nothing called as mind separately. It's always Sharira. Both body and mind complex is called as Sharira.
मैं एक एग्जांपल दूं आपको, लेट्स टेक एग्जांपल, ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक। अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए। ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक। Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा। एंड जस्ट अ लिटिल बिट, इफ यू नो हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं। यू जस्ट कैच इट देन एंड देयर। तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे। सो इज योर एक्शन एंड योर माइंड डिफरेंट? इज योर बॉडी एंड माइंड डिफरेंट? नो, इट इज नॉट डिफरेंट। ये अलग नहीं। सो योर बॉडी and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के, हाँ या ना? So there is something called as प्रकृति, न्यू सेल्यूलर फॉर्मेशन। नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं। एंड there is another aspect called विकृति, lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं। आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, सर्टेन एज, दे वेयर ऑफ। दिस इज वेयरिंग ऑफ इज कॉल्ड एज विकृति एंड प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज प्रकृति। राइट? ये दो चीज हमेशा चल रही है। देयर हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिलीज। ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए। Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं। ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका। So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं। If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं? ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं? ज्यादा छोड़ते हैं आप, लेना नहीं चाहते हो। योर बॉडी डजंट वांट टू। अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है। You don't take in, you try to exhale more. If you get tired, अगर आप थक जाते हैं, what is tiredness? थकना क्या हुआ? Lot of toxins in the body, isn't it? What do? You do long exhalation. Oof. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट सेइंग इट इन दैट वे। हमने क्या किया? वातावरण का खराब कर दिया। डू यू थिंक योर बॉडी वांट्स टू इनहेल मोर और एक्सहेल मोर? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी। What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है। Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है, it doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more and correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है। Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं। So there is an imbalance of प्रकृति and विकृति. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है। So
ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी. So what are you doing to create a balance of these two things? You are not doing anything. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? First of all, so this is the first thing that we need to get to: a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do you do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो. See a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold. It is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, all the 5 senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है, तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtanga Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then, next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born, and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuromusculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना. Skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. At muscles, at joints. आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना वहां पे. So disalignment, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a backrest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. 3 basic disalignment है. नाभि,
your navel can get disaligned, we call it dharan. Your chest can get disaligned, आपकी छाती डिसअलाइन हो सकती है, that part is called as kaudi. And your legs can get disaligned, आपके जांघें डिसअलाइन हो सकती है, that is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale. Now if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है ना, आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel, but nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of kaudi or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, let's see how do we balance. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, hold your right hand over the top and try to pull it. खींचने की कोशिश करें, just pull on the left side. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. When you pull, what do you do? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? You hold your breath. Yes or no? सांस रोकी आपने? Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है? वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go to the third part, Pramana. Now one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you, that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest, अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, pramana sharira, prakriti, vikriti, sankhya, pramana. चौथे पे आ गए हम, pramana. Pramana means density. इसका मतलब होता है density, गुरुत्व, भार. Density, इसी को धातु भी कहते हैं. We call it धातु. There are different types of tissue in your body, isn't it? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. Like bone is very much dense. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, your fat muscle, your fat tissue or adipose tissue is very light compared to the muscles and bones. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. People who have denser bones and muscles, their weight is high even though they are lean. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as sapta dhatu. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. Rasa, Rakta, Mansa, Med, Asthi, Majja, Shukra. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के tissues हैं. If the density becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, heart, liver, lungs, kidney, ये जितने भी organs हैं ना, इनको काम करने के लिए there is a density required. So we are losing on the density of our organ. हमारी organ weak हो रही है. What is diabetes? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना?
It has also a relation with liver. What is kidney disease? Or kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज़्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. There is no medicine. There cannot be a medicine. दवाई हो ही नहीं सकती है. So you will have to work internally. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. You can do exercise, you can do weight training, isn't it? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैनॉट रिजुविनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. मेक अ फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड. कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस एंड ट्राई टू पुश योर लेफ्ट पाम वेरी हार्ड. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. हाउ डू यू क्रिएट दिस स्ट्रेंथ ऑफ पुशिंग? ये जो शक्ति आप क्रिएट कर रहे हैं, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ. यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ बिहाइंड. करके देखिए दोबारा. अगेन डू इट अगेन. सी, पुश इट हार्ड. यू होल्ड योर ब्रेथ. सांस रोकते हैं आप, बट सांस रोक के बाय होल्डिंग द ब्रेथ, वेयर आर यू क्रिएटिंग द ट्रिगर? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, तो ये भार आप उठाते हैं. सो हाउ डू यू लिफ्ट वेट? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यू कांट लिफ्ट वेट विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath you are creating an external trigger. Now very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे हैं, तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally, your heart rate will increase. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. You start sweating after some time. पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the pramana sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you. For youngsters also. छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ
strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. Organ आपकी आंतों के बीच में. Lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called marmas. So marma needs a constant rejuvenation. इनको constantly एक तरीके से movement देना पड़ता है. To keep it fine, we need to actually make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving you another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना? If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना? क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, new cellular form, better cellular formation. अगर वो environment ठीक नहीं होगा, तो wrong cellular formation called, and this is called as cancer. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. So because of an internal environment, cancer happens because of a cancerous environment. और उसके लिए, if you want to come out of that, then there should be constant rejuvenation of marma. तो इसमें हम marma अष्टांग चिकित्सा में, there is a part in अष्टांग चिकित्सा, there is a part called as anganyasa and marma vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtanga Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना? So function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी. Material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these words called vata, pitta, kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, kapha, pitta, vata. Most of the problem is attributed to dynamism.
वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? मूवमेंट को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? What is vata? Movement. Vata also creates pain. So movement, how do you control movement? If you want to move your hand, how do you control the movement? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाएं, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए. How do you control this movement? By holding your breath in a particular manner. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. Yes or no? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you will get a joint pain relief. Temporary, it's little temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice kumbhak. कोई और चारा है नहीं. So dosha sharir ko, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do vata pitta kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure. Rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about, spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University, or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, एक lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, उसका marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पलकती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started kumbhak. In
4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता. So these are examples of people who have done Kumbhak, and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part, or the seventh Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now being busted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say, or what is being said in the world today, can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे gravity के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are
यू आर अप्लाइंग अ फोर्स अपोजिट टू ग्रेविटी. सपोज कीजिए आपके अंदर दिस फोर्स बिकम्स वीक इनसाइड यू. ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स लगाना कमजोर हो गया, आपको कैसा फील होगा? हाउ विल यू फील इन योर बॉडी एंड माइंड? यू विल फील हेवी, पुल्ड बाय ग्रेविटी. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. विल नॉट फील लाइट. हाउ विल यू फील? हेवी. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे हेवी फील करेंगे. वेयर विल द हेवीनेस इंपैक्ट? ये हेवीनेस कहां असर करेगा? आपके जॉइंट पे. इट विल इंपैक्ट द जॉइंट, यस और नो? This heaviness is called as stress, S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root उदाना. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग अलग फोर्सेस में आप काम करते हैं. Your organ function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा फोर्स वीक हो गया जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए? That is what we diagnose in प्राण शक्ति diagnosis. यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis, and in the 9 weeks you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as अंगन्यास. The second one is called as hatha vinyasa. The third one is called as kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you will not get a magic pill. कोई मैजिक दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important. Wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड यूल सी
your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. हाँ? So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. Now I would like to invite Nilambari ma'am to share her journey of Ashtang Chikitsa. Nilambari ma'am. Ashwini, can you please put Nilambari ma'am on spotlight, please? Yeah, doing it. If she's there. Nilambari. Nilambari ma'am. Hello. Please unmute yourself Yes. and start your video also. Nilambari Jacob ma'am. Yes. Ma'am. Yeah. Can you please put her on spotlight, please? Yeah, she is on spotlight. Okay. I have asked her to unmute herself. Ma'am, you need to unmute yourself. Yeah, I did it now. Yes. Right. Can Yeah. you Now hear you're me on. now? Can you Yes, see? yes. Yeah. Yes. Okay. Thank you very much. Mhm. Good evening Thank you to so all much. the team members. And I heard Swamiji saying so much valuable things. And I'm quite impressed, of course. I try to follow these things in my life. And it was so appealing because whatever he said that it is not only with me, but I have forwarded it to my children also. And I don't know, in today's world, I do not have any doctor as such till today that who could suggest me any medicine, something, except one thing. I would like to, I came to this Kumbhak class, which was really of great interest because I wanted to learn something more to be on this right path to whatever the gifted body that I have got, that God has given us to all this chemical factory inside us. And I want to really nurture that. And I want to give respect to the maker that whatever is given, that, okay, it's my duty to enhance and be healthy as I am till the last breath. And I'm planning to do that. Only one thing it happened in my whole 67 years of life, that no medication, I hardly remember that, okay, even I have gone through beyond Crocin Dolo 650. I don't know any allopathy medicines. I believe in Ayurveda. I do home remedies. If I'm not saying that, okay, I'm totally healthy, but some of the things, that stress level, whatever Swamiji just mentioned, this one comes automatically sometimes or with the circumstances you face. But I'm very, very optimistic. Very recently in 21, I got breast cancer, and I was, it was in initial stage, and I got mastectomy done. But before I went for the surgery, I told my surgeon that I do not want to take any radiation or chemotherapy. This is like, okay, whatever the things are already in my body, we will take it out. But I'm not ready for going, all this chemical and radiation going through my body. I will take Ayurveda. I will take any other measures which will be natural. And when I came across with this Kumbhak, I really jumped at the offer. I did not think for a spur of moment also that whether I should join or not, because I tried to join and I'm doing it sometimes irregularly because of my heavy schedule and hectic schedule, because I'm into yoga therapist and acupressurist, puncturist. So I have got my patients and I start my day. And at the age of 67 also, I work almost, I would say from 4 o'clock in the morning, I always get up for my prayers and for my meditation and some rituals. I do all my chores on my own for all these years.
I'm still saying that, okay, since I came back from hospital till now, I do all my chores apart from Corona or any other things. I believe that I should be working all this way, and I'm just normal right now. And I'm so thankful to the team members and Swamiji, of course, because of his encouragement and the valuable knowledge that he is giving me. I'm practicing, but sometimes it is missed, of course, because of my heavy schedule. And then when I come back, then I eat, then I have to, give little, gap of 3 hours or something after my lunch or whatever meal I take. But I try to follow all the things. And what I found after doing this Kumbha practice, not very, very religiously, that every day I can spend 1 hour or 1.5 hours going through all the videos and everything, because renovation is going in my house. But apart from that, also, I wanted to just join this course. And I wish that I could learn something more. I could find the great difference in this particular practice, that my walking has become more swift and more lighter, and I'm more energetic. I am already energetic, but I'm finding sometimes more and more hyper. I mean, I do not get tired at all. I mean, people, they might, my children also, they call me a little bit crazy because I don't know where to stop. I sleep only for 4 hours or 5 hours at the most for years together, and that is sufficient sleep for me. But this sleep after joining Kumbha, it is more deeper. And I think so my brain goes to alpha level 2, that where I get satisfaction of sleep in those less number of hours of sleep also. So I'm really thankful to Swamiji. And I really have got one request, that if I could earn some more knowledge or more information after this course also, I will feel sad that, okay, now we are going to end this session after 9 weeks and only 1 week is remaining. But I'm really willing to join the team or wherever I can gain more knowledge. Thank you so If it is much. possible. If it is possible. you so Thank you much, once again to Niyamba. everyone on the team, and Swamiji also. Thank you very much. Thank you so much. Okay. So now I will be sharing the program details. So just give me 2 minutes and I will be sharing the screen. Is the screen visible, Ashwini? Ma'am. Ashwini, Neha, Yes, is the yes. screen visible? Yes, ma'am. Okay. So let us know about the Ashtang Chikitsa online program details now. It's a guided program conducted online by trained Kumbhak mentors. हमारे जो mentors हैं, वो उन्हें actually train किया गया है. They are not just any yoga trainer who is going to train you. So let's come to the program modules. Vata, duration 21 days. Pitta, duration 21 days. Kapha, duration 21 days. So program overview, duration is for 10 weeks. We require your engagement for 10 long weeks. Classes, 2 live classes, 1 learning, main class, and 1 mentoring practice class. Next steps, pay the program fee, webinar special price, fill the participants onboarding form, login credentials for course access, start your classes with M1, M2, and M3. Total classes, M1 module, 6 classes, 3 learning, 3 mentoring, 21 days,
M2 module, 6 classes, 3 learning, 3 mentoring, 21 days. M3 module, 6 classes, 3 learning, 3 mentoring, 21 days. So total classes, 18 learning classes plus 1 customization class. Engagement, 10 weeks. So we will be starting our batch 130, 130, that is 15th May to 2023, Monday at 6:30 p.m. sharp. So mentor classes for module 1, mentor classes are on Thursdays. For module 2, mentor classes are on Fridays. Module 3, mentor classes are on Saturdays. So what is the class experience like? Live sessions, written instructions, English, Hindi, mentors watch participants, session recordings. What are the extras you get? Mental practices, unique diet perspective, knowledge like no other, simple detox. Let's look at how much you may be spending just to manage your disease. The yearly expenses. Doctor fee could be anything between 6,000 to 12,000. Physiotherapy, 12,000 to 30,000. Medicines, 15,000 to 30,000. Total of 33,000 to 72,000 per year, plus side effects of allopathic medicine. So before I share the program details, it's very important to know who this program is not for. It's not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only. This is not for those who are not ready to work on their body, not for those who cannot invest 80 to 90 minutes every day on themselves, not for those who are impatient, and not for those who are looking for a free treatment available on YouTube or just some tips. So what all you get? Pran Shakti diagnosis for root cause determination. So what all you get again? Weekly 1 main class of 60 to 90 minutes. Weekly 1 practice class of 60 to 90 minutes. Online course access for 6 months. Videos of all kriyas done in the class. Written instructions in English and Hindi. Private WhatsApp group to ask doubts, questions, 6 days. Individual participant progress tracking feedback. Extended support for 30 days after the program is over. So let us see in just what all do you get in this online therapeutic class. Pran Shakti diagnosis for root cause determination. Weekly 1 main class of 60 to 90 minutes. Weekly 1 practice class of 60 to 90 minutes. Online course access for 6 months. Course dashboard, videos of all kriyas done in the class. Course dashboard, written instructions. Private WhatsApp group to ask doubts, questions. Individual participant progress tracking feedback. Therapy customization for each participant in the 10th week. Extended support for 30 days after the program is over. Program fee for Ashtang Chikitsa, 14,500. Now let's look at the exciting webinar special pricing. So here comes the special webinar pricing, 6,500 only, valid till 30th May 2023, 12:30 p.m. 10 weeks program, 19 classes. So per class, you just pay 342 per class, plus all the 10 benefits. So how to enroll? Pay the program fee, post the payment receipt in the WhatsApp group, fill the participant onboarding form, join the class WhatsApp group, start attending classes to learn Ashtang Chikitsa.
So payment methods, discounted fee 6,500, valid till 13 May. These are the payment links which will be shared in the chat as well as in the webinar group. The QR code for scanning. So let's come across a super team. Rachna Shrimal Bothra, that's me, the program director, Shalini Bhagwat, the class manager, Ashwini Kumar, the manager IT, Neha Upadhyay, the enrollment in charge, Anil Chauhan, the WhatsApp admin, Himanshu Reddy, the technical support guy, Anita for personal support. So mentors, who are the mentors? Ranjana Swain, R.D. Gupta, Soni Chabaria, Aruna Narayan, Neena Rai, Suruchi Goyal, Arundhati Digaokar, Meera Nambal, Sushma Rastogi. Thank you so much for listening to me patiently. I will now be taking up the questions. Let me just check if Swamiji has joined in. Okay, so Swamiji will be joining in shortly. Okay, till the meanwhile, I will just read the questions. Okay, somebody in the group asked me how long to breath hold. So here, when we are doing this program, the breath hold is according to your comfortability. There is no force on the body. Okay. Just give me 2 minutes. I'll be checking. So Swamiji is just joining in. So just give him 2 minutes and he'll be taking up all your questions. Neha, could you share the details of the payment so that whoever is interested can make a note? It will be shared in the webinar group as well. Already shared, ma'am. Thank you so much, Neha. Is there any offline course also? Manju ma'am, there is no offline course as of now. We just have online course so that more and more participants can be reached. Himanshu, can you please see somebody sharing the screen? Okay. So let me just check. I think Swamiji has joined in. Ashwini, as soon as Swamiji joins in, please put him on spotlight.
Deepa ma'am, how to manage if there is a class missed due to official travel? If you have a class which you have missed, which mostly happens since it's a 9 weeks program, you get the recording, and next time when you are in class, you can ask your questions or even in the class group, so the mentors will answer to you. You will get the PDF as well as the recorded session. Okay, Swamiji has just joined in. I'll just put him on spotlight. Thank you so much, Swamiji, for joining in. Namaste, good evening. Redmi 10A, knee ankle stiffness after plastic surgery due to accident, not able to walk. After plastic surgery, some stiffness is happening. What does it mean? It means your body is resisting something from inside. Whatever has been done on your body, the body is resisting. Body resist कर रहा है उसको. इसीलिए आपको क्या जरूरत है? A little rehabilitation. जब भी हम कोई इस तरीके की सर्जरी करवाते हैं, it is important that we improve the body's response and the body's functionality towards the change. उस change के लिए हम अपने शरीर को prepare करें, rehabilitate करें. What does rehabilitation mean here? यहाँ पे rehabilitation का मतलब क्या है? कि if there is a disruption in some kind of movement, movement में किसी तरीके का कोई disruption हम create करते हैं, the movement remains fine or gets re-established. इसके लिए हमें अंदरूनी, अंदर शरीर के अंदर किसी चीज में जिसे मूवमेंट जिससे होता है, वो क्या चीज है? वो है प्रेशर ग्रेडियंट. कोई भी आपके शरीर में मूवमेंट होती है, वो एक प्रेशर क्रिएट करके आपका बॉडी मूव करता है. वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा तो स्टिफनेस आती है. प्रेशर नहीं क्रिएट हो पा रहा तो स्टिफनेस आएगी, क्योंकि कोई सर्जरी करके उस प्रेशर ग्रेडियंट को डिसरप्ट किया गया. अच्छा, हम क्या कर रहे हैं? कुंभक क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट को रीस्टैब्लिश करने का नाम कुंभक है. मैं आपको कुंभक के बहुत सारे डेफिनेशन दे सकता हूं, उसमें से एक डेफिनेशन प्रेशर ग्रेडियंट को रीस्टैब्लिश करने का नाम कुंभक है. तो हम क्या कर रहे हैं? वही कुंभक करके आपके बॉडी के मूविंग फैक्टर, और मूवमेंट में क्या क्या इस्तेमाल होते हैं? न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम. ठीक है ना? तो वो रीस्टैब्लिश करेंगे. जैसे ही वो रीस्टैब्लिश होगा, आप देखेंगे आपका मूवमेंट बहुत स्मूथ हो जाएगा. जिन लोगों को भी स्टिफनेस होती है, इसका एक दूसरा आयाम भी है. जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं, उनके बॉडी में बहुत स्टिफनेस होती है, खास करके ऊपर शोल्डर की स्टिफनेस, सर्वाइकल का इशू, स्पाइन में इशू ये होता है. तो जैसे ही वो कुंभक शुरू करेंगे, उनके बॉडी में मेटाबॉलिक हीट जैसे ही बढ़ेगी, वो जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है. तीसरी बात यह है कि टॉक्सिन्स भी निकालने हैं, तो आपको थोड़ा प्रेशर क्रिएट करके टॉक्सिन को भी फ्लो करवाना होता है, निकालना होता. टॉक्सिन भी निकलेंगे तो आपको पता चलेगा जॉइंट का इन्फ्लेमेशन कम होगा, जॉइंट की मूवमेंट अच्छी हो जाएगी. मैंने 2-3 तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, बट आपके केस में सर्जरी वो पहले मैंने ले दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. Just let's. Okay. So after COVID, no, Mitina here, I have ILD and suffering from body pain since 20 days. No osteoporosis, age 55. ILD inflammatory lung disease के बारे में अगर बात कर रहे हैं, see if you have other major issues, please share your number along with the problem so that we can guide you to the right kind of program. We have different program for different ailments. हाँ, lungs के लिए और जिनकी lung capacity कम हो, हालांकि कुंभक करने से हर जगह आपको देखने को ये मिलेगा lung capacity बढ़ेगी, बट inflammatory lung disease जो है वो अपने आप में कमजोरी होती है. आपके लंग्स की कमजोरी है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रहा है. वहाँ पे टिश्यू स्कारिंग हो सकती है, वो ना लंग में कई इशू की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है.
तो इफ यू शेयर योर प्रॉब्लम अदर देन न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल इशू, अगर कोई एक मेजर इशू है ना, तो आप हमें सारी प्रॉब्लम्स अगर बताएंगे ना, व्हाट हैपेंड फर्स्ट, ऐसे करके, तो हम आपको राइट काइंड ऑफ प्रोग्राम में गाइड कर सकते हैं. बट अब मैं उन लोगों को बता रहा हूं ये बात जिनको जॉइंट का इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना, ये इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज के बारे में बात जो है वो तो अलग से हम गाइड कर देंगे, बट जॉइंट के इन्फ्लेमेशन की वजह से भी जॉइंट का पेन होता है. तो आर्थराइटिस जिसे कह रहे हैं वो दो कैटेगरी में आप देखेंगे, एक इन्फ्लेमेशन है और दूसरा क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसे रूमेटॉइड कंडीशन कहते हैं, है ना. ऐसा ऐसा नाम आपने सुना होगा. तो अगर आप नाम को ठीक से समझ जाए ना, व्हाट डज इट मीन, तो आपको पता चल जाएगा आपको कहां पे काम करना है. ठीक है. तो इन्फ्लेमेशन के बारे, स्टिफनेस के बारे में देखो, somebody आज जॉइंट स्टिफनेस के बारे में, स्टिफनेस मैंने बता दिया. इफ यू हैव वात कफ इशू देन देयर विल बी स्टिफनेस. फिर अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक करें और आपके बॉडी से टॉक्सिन निकालें, ये दो काम करने से वो जॉइंट का पेन चला जाता है. नी के बारे में जो बात कर रहे हैं, बट इन्फ्लेमेशन को मैं पर्टिकुलरली ले रहा हूं. इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है ना, इसको देखते हैं और थोड़ा कनेक्ट करते हैं किसी और चीज के साथ में जिसकी वजह से हो रहा है. देखिए अभी जो आप काम कर रहे हैं अपने शरीर के ऊपर, वो ट्रीटमेंट तो नहीं है, वो क्या है, मैनेजमेंट है. मैनेजमेंट है. अगर आप घुटना खराब हो गया, घुटना बदलवा लो, यानी घुटना ठीक तो किया नहीं आपने. अगर आपका किडनी खराब हुआ, किडनी बदलवा लो, तो किडनी तो ठीक नहीं किया ना आपने. लिवर, हार्ट, यही तो काम कर रहे हैं. आप जाते हैं कहते हैं कि भाई ये ट्रांसप्लांट करो, इसका मतलब वो ठीक नहीं कर सकते. मगर क्यों ना शरीर को एक चांस दिया जाए, क्योंकि आपकी बॉडी ठीक कर सकती है. लाखों सालों से इतनी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी ना शरीर को. आप जरा अपने पीछे जाइए, जस्ट 2 generations बैक, दादा के पिता, वहां पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. नो डायबिटीज, नो ब्लड प्रेशर, नो हार्ट डिसीज, नो थायराइड इश्यू, नो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऐसा कुछ था ही नहीं. ये तो आपके साथ में ज्यादा हो रहा है और आपके बच्चों के साथ में, यानी हमारे बच्चों के साथ में और ज्यादा बढ़ जाएगा. वो तो बचपन से बीमार हो रहे हैं. तो कहने का मतलब ये कि मैनेजमेंट तो चलो जरूरी है, तो बहुत जरूरी है तो मैनेज कर दिया, यानी बहुत जरूरी है तो ऑपरेट करा लिया, है ना. लेकिन ऑपरेशन तो कभी भी किया जा सकता. अगर ट्रांसप्लांट की बात है तो कभी भी करवा सकते हैं ना. तो क्यों ना एक बॉडी को थोड़ा चांस दें. तो उसके लिए समझना पड़ेगा, क्या ये बॉडी ठीक कर सकता है आपका, क्या ये आपका शरीर आपके घुटने को रिपेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता. तो सबसे पहली बात मैं आपका ध्यान वहां ले जाना चाहूंगा, जब आप बहुत छोटे थे तो उस समय आपके घुटने, जॉइंट सब छोटे छोटे होंगे ना, हड्डियां भी छोटी होंगी, है ना. इसका मतलब बड़ी तो है, जैसे जैसे बढ़े वो बढ़ गई. इसका मतलब आपके शरीर को मालूम है कि रीजनरेशन कैसे किया जाता है कि नहीं. आपके शरीर को मालूम तो है रीजनरेशन कैसे किया जाता है. शायद हमने कुछ ऐसा किया जिससे कि बॉडी के रिकवरी या रीजनरेशन को वीक कर दिया, कमजोर कर दिया. तो मैं आपको आपके शरीर की एक कहानी सुना रहा हूं. मैं रिप्रेजेंट किसे कर रहा हूं, आपके शरीर को. ठीक है ना. ऐसा मान के चलिए कि आपका शरीर आपको कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है. वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए. अभी इस दुनिया में तो कोई भी बीमारी कम नहीं हो रही ना, इतना ज्ञान हमें हो गया. डायबिटीज बढ़ रही, थायराइड बढ़ रहा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा, घुटने की प्रॉब्लम, जॉइंट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड, ये कंडीशन बढ़ रही है, तो ठीक तो हो नहीं रहे. तो शायद हमें दूसरे तरीके से भी देखने की जरूरत है. तो आपका बॉडी ये कहता है कि मैं 2 तरीके से तैयार होता हूं, मैं 2 तरीके से आपको मदद करता हूं. आप मेरे अंदर खाना भोजन डालते हो, मैं उसका मेटाबॉलिज्म करता हूं, पचाता हूं, आपके अलग अलग अंगों को बनाता हूं. और दूसरी चीज, जब आप गलत चीज अगर आपके शरीर में चली गई तो मैं उसको मार के या उसको ठीक करता हूं. इसे इम्यूनिटी कहते हैं. तो 2 तरीके से एक आपका शरीर आपको मदद करता है, मेटाबॉलिक रिस्पांस के जरिए, इम्यूनिटी रिस्पांस के जरिए. 2 तरीके से ये काम करता है. समझ लिए, ये बात सिंपल तरीके से समझिए. अब समझिए कि आपने अपने भोजन की जगह कुछ और डाल दिया, तो आपका शरीर क्या कह रहा है. अगर आपने भोजन की जगह कुछ और डाल दिया तो मैं उसे हमेशा खतरे की तरह ट्रीट करता हूं. ठीक है, हमेशा खतरे की तरह ट्रीट करता हूं. और रिस्क बॉडी में जब आती है तो रिस्क मिटिगेटिंग मैकेनिज्म, रिस्क को कम करने का तरीका अपनाता हूं.
अब आप याद कीजिए 2 साल के 2 साल नहीं 2 किलो के बच्चे जब पैदा होते हैं, 2.25 किलो 1.25 किलो के बच्चे पैदा होते हैं, उसको इम्यूनाइजेशन के नाम पे कितनी केमिकल्स डाले जाते हैं शरीर के अंदर? और आपने आज तक कितने केमिकल्स डाले होंगे शरीर के अंदर? तो आपका शरीर तो केमिकल्स के लिए डिजाइन नहीं हुआ था ना। अब ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? क्या उसको भोजन की तरह ट्रीट करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो यानी खतरे की तरह ट्रीट करेगा। यानी कि आप कोई भी गोली डालते हो तो शरीर क्या कहता है? अरे खतरा हो गया, खतरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ती है। क्या अब ये शरीर आपको बोल रहा है, आपने केवल केमिकल ही नहीं डाला। याद कीजिए आपके घर में दवाई का कितना बड़ा डब्बा पड़ा हुआ है। याद कीजिए आपने पूरी जिंदगी में कितनी दवाइयां खाई होंगी। तो आपका शरीर कहता है आप तो केवल मेरे अंदर दवाई ही नहीं डाल रहे, केमिकल ही नहीं डाल रहे, आप तो भोजन भी ऐसा डाल रहे हो जिसको जो हाइब्रिड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, प्रोसेस्ड है, ठीक है, इनऑर्गेनिक है। आपके तो दूध में ही एंटीबायोटिक, हार्मोन और पता नहीं क्या क्या मिलता है कि नहीं मिलता? आप दूध जब पी रहे हैं, चाय बना के ले रहे हैं या बच्चों को दे रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर एंटीबायोटिक है, हार्मोन है, पस सेल है। आपके अनाज में क्या है? जो भी खाद डाला जाता है वो आपके अनाज में है। तो आप तो केमिकल केवल दवाइयों के रूप में ही नहीं डाल रहे, आप तो केमिकल भोजन के रूप में भी डालने लग गए। तीसरी चीज आपका शरीर बोलता है, जिस वातावरण में मैं स्वस्थ रहने लायक रहता हूं, आपने उसको भी बदल दिया। आपने अपने आसपास देखिए पानी कहां मिलता है? ताल, तालाब, सरोवर, जमीन के अंदर पानी कहां गया? फ्रेश वाटर 50 फीट से 5,000 10,000 फीट नीचे कर दिया। वातावरण तो पोल्यूट हो गया। आप घर में बैठे चाहे बाहर जाए, इससे बाहर से घर में बैठने से वातावरण ठीक तो नहीं हो जाने वाला। और ऊपर से खराब करने के बाद हमने अपने आप को कट ऑफ कर दिया। तो अब क्या किया? इसकी वजह से आपका शरीर बोल रहा है कि आप लगातार कुछ गलत चीज डाल रहे हैं, तो मैं तो खतरे में आ रहा हूं, मैं तो खतरे को निकालने की कोशिश करता हूं। आप जब कोरोना होता है, वायरस से मारने के लिए मैं फीवर करता हूं, गर्मी पैदा करता हूं ताकि वो वायरस मर जाए, तो आप पैरासिटामोल, डोलो, क्रोसिन खा के मुझे वो काम नहीं करने देते। जब मैं आपके शरीर को सफाई करने के लिए उल्टी करवाना चाहता हूं, तो आप उल्टी बंद कर देते हो। जब मैं दस्त करवाना चाहता हूं, तो आप दस्त बंद कर देते हो। जब आपके शरीर में मैं दर्द बना के, प्रोस्टाग्लैंडिन क्रिएट करके आपके शरीर को रीजेनरेटिव पुश देना चाहता हूं कि ठीक करे, तो आप दर्द की दवाई खा के वो काम होने ही नहीं देते। आप रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके मुझे काम ही नहीं करने लायक आपने छोड़ा। तो मुझे आप इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो भाई? मेरी वजह से ही तो जिंदा हो। तो जब आप टॉर्चर को ट्रीटमेंट का नाम दे देंगे, तब तो आप मनुष्य प्रजाति को तो कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि शब्दावली गलत हो गई। आपने टॉर्चर को ट्रीटमेंट बोल दिया। तो आपके लिवर में ये सारी दवाइयां जो केमिकल डालते हो, सबसे पहले लिवर आपका गेट कीपर है, वहां पे सारा कुछ आता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है आपकी बॉडी में। तो लिवर चेक करता है, वो दूसरा ब्रेन है, वो चेक करता है। तो वो क्या करेगा? आपने 500 मिलीग्राम का पैरासिटामोल खाया, 498 मिलीग्राम वो निकाल देगा। आपके शरीर में पानी की मात्रा में उसको घुलो के किडनी के थ्रू उसको निकलवा देगा। 2 मिलीग्राम ओवरलोड कर दिया, इसे कहते हैं डोज टाइट्रेशन। देखो आप ग्रीको रोमन शब्द रखते हो। टॉर्चर के अगर विदेशी नाम रख दीजिए तो टॉर्चर भी आपको सुंदर लगेगा ना सुनने में। आप ग्रीको रोमन ऐसा शब्द रख देते हैं, डोज टाइट्रेशन। फर्स्ट लिवर बाईपास, इसे कहते हैं फर्स्ट लिवर बाईपास, कि ओवरलोड कर दिया लिवर को, तो कुछ तो आपके शरीर में घुस गया। लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या? आपके किडनी पे लोड आ रहा है कि नहीं आ रहा? लिवर पे लोड आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मुझे बताइए कितने डायलिसिस सेंटर खुल रहे हैं? क्या आपने गिनती की? जरा गिन के देखिए, गूगल में सर्च कीजिए ये सब। आपके आसपास भी कई डायलिसिस सेंटर नए नए खुल रहे हैं। ठीक है, लिवर का इशू बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, लिवर क्या होगा? मेटाबॉलिज्म की पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है।
वो बेचारा ओवरलोड कर दिया उसको, कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो गया तो काम कम करेगा ना, अच्छा काम नहीं करेगा। कमजोर हो गया, आप अच्छा काम करते हैं, कमजोर होते हैं तो नहीं कर पाते। कमजोर हो गया तो इंसुलिन नाम सुना होगा आपने, वो आपके लिवर में आके गिरता है। तो लिवर क्या कहेगा, नहीं भाई मैं तो कम काम कर रहा हूं, इतना नहीं चाहिए मुझे। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो डायबिटीज वालों को मालूम है, जरा गूगल में सर्च करके देखिए। टाइप 2 डायबिटीज जिसे कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज ये वही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन अब आपका लिवर इस्तेमाल नहीं करेगा तो कहां रह जाएगा इंसुलिन, खून में रह जाएगा। और खून जहां पे ज्यादा काम खून का हो रहा है वहां पे इंसुलिन कोई ना कोई गड़बड़ी करेगा। तो लेडीज में ब्लड का काम कहां सबसे ज्यादा होता है, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, यहां पे सबसे ज्यादा होता है। तो वहां पे जाके ये इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन है तो कुछ ग्रोथ करवाएगा, अननेसेसरी ग्रोथ करवाएगा। इसे कहते हैं सिस्ट। अननेसेसरी ग्रोथ, अननेसेसरी चीज निकल गई, गांठ आ गई तो उसे सिस्ट कहते हैं। और फिर लेडीज में क्या हो रहा है, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। किसी ने पूछा पीसीओडी क्या का क्या होगा, पीसीओडी का इलाज कैसे करेंगे, मैंने आपको बता दिया। नहीं, मैंने आपको बताया कि ये होता क्यों है। अब इलाज कैसे करेंगे, पहली बात तो आप वो दवाइयां जो ले रहे हैं, जैसा वातावरण है, जैसा फूड ले रहे हैं, उससे तो एकदम भाग नहीं सकते ना, क्योंकि दूसरा अर्थ तो है नहीं, पृथ्वी तो है नहीं कोई दूसरी, वहां भाग के चले जाओ। तो उसके साथ साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लिवर को मजबूत करना पड़ेगा, अपना मेटाबॉलिज्म को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि आप इस नुकसान को झेल जाएं। अपना टॉलरेंस बढ़ाना होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब मैं सारे सॉल्यूशन बता रहा हूं, एक एक करके पकड़ेंगे तो पकड़ लेंगे, मिस हो जाएगा बहुत जल्दी, ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि आपको ट्रेन नहीं किया गया इन सब चीजों में। लेकिन आप समझ सकते हैं, आप लोग समझदार हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूं कि आप लोग बहुत समझदार हैं। केवल प्रॉब्लम यह है कि थोड़ा पढ़ लिख गए हैं, तो अपनी पढ़ाई लिखाई को साइड में रखिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, जो मैं बता रहा हूं उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पढ़े लिखे लोग इतने समझदार नहीं होते। तो अब मैं बता रहा हूं, टॉलरेंस अगर आप बढ़ा दें, आपको कोई बीमारी हो, आपका शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता है 150 200, चलो आपका टॉलरेंस कितना है, सपोज करो 200 फ्लक्चुएट करता है शुगर, टॉलरेंस आपका 10 है, टॉलरेंस 10 है, तो आपका रिस्क कितना हुआ 20, और टॉलरेंस को 20 कर दो तो रिस्क कितना हुआ 10, आधा कर दिया रिस्क आपने। टॉलरेंस बढ़ा दीजिए, वही शुगर लेवल आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। टॉलरेंस बढ़ा दीजिए, वही बीपी आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। टॉलरेंस बढ़ा दीजिए, आप जितनी भी तरीके से अपना नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं उससे बच जाएंगे। पहली बात, टॉलरेंस कैसे बढ़ाते हैं, आप अगर 10 किलो उठा सकते हैं, 15 किलो उठा के देखिए, कैसे टॉलरेट कर रहे हैं उसको, कैसे उठाते हैं, सांस रोक के उठाते हैं, जरा करके देखिए एक्सपेरिमेंट। टॉलरेंस कैसे बढ़ाते हैं, अगर 10 किलो उठा सकते हैं, 15 किलो उठाइए, देखिए आप ज्यादा सांस रोकना पड़ेगा आपको। दूसरा तरीका, टॉलरेट कैसे करें, खड़े रहने का टॉलरेंस। खड़े हो जाइए दोनों पांव, जब भी मौका मिले ये एक्सपेरिमेंट करके देखो। खड़े हो जाइए दोनों पांव जोड़ के, और किसी को बोले कि आपको धक्का देके गिराए, आप टॉलरेट कैसे करेंगे उस पुश को, सांस रोक के अड़े रहने की कोशिश करेंगे कि नहीं। तो अगर आप जल्दी गिर जाते हैं, इसका मतलब क्या है, आपकी सांस रोकने की क्षमता कम है। अगर सांस रोकने की क्षमता कम है तो टॉलरेंस कम है, सांस रोकने की क्षमता बढ़ गई तो टॉलरेंस बढ़ गया। अब वही धक्के से आप नहीं गिरेंगे। इसे डायरेक्टली आप इम्यूनिटी के साथ में जोड़ सकते हैं। इम्यूनिटी कम है, इसका मतलब क्या है, कोई भी बाहर का वेदर फट से आपको सर्दी जुकाम ला देता है या आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बाहर से पुश आ रहा है, वो पुश के कारण आप गिर जाते हैं। वही सांस रोकने की क्षमता अगर आपकी ज्यादा होगी तो वही पुश आप नहीं गिर पाएंगे। यही चीज हम रिपोर्ट कर, हमारे बहुत लोग, सैकड़ों हजारों लोग रिपोर्ट करते हैं, जब वो कुंभक करते हैं कुछ समय तक, कुंभक करने के बाद उनको पता चलता है कि अरे पहले हम तो बहुत जल्दी बीमार होते थे, अब नहीं हो रहे। अरे मेरा तो शुगर लेवल 300 पहुंचा हुआ है, मगर मेरा ग्लूकोमा ठीक हो गया। चोट लगती है तो जल्दी ठीक हो जाता है, न्यूरोपैथी ठीक हो गया। अरे इसका मतलब 300 शुगर लेवल गलत नहीं है मेरे लिए, तो
देखिए, लेवल गलत आपके लिए तब है जब आपका टॉलरेंस कम है। टॉलरेंस बढ़ गया तो वही लेवल आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो क्या आपको टॉलरेंस नहीं बढ़ाना चाहिए? मेडिसिन से तो ठीक नहीं हुआ, मुझे एक इंसान बता दीजिए जो डायबिटीज से निकल गया, आर्थराइटिस से निकल गया, रूमेटाइड जिसका ठीक हो गया दवाई खा के, न्यूरोपैथी ठीक हो गई, न्यूरो डीजेनरेशन ठीक हो गया। कोई एक इंसान का तो एग्जाम्पल बताइए पूरी दुनिया में। दवाई खा के तो ठीक नहीं होने वाला। तो क्या हम आपको दवाई लेने से मना कर रहे हैं? नहीं, आपका शरीर ना एडिक्ट हो चुका। तो अगर आप सिगरेट के एडिक्ट हैं तो हम एकदम से तो नहीं छुड़वाएंगे। हम कहेंगे पहले अपने शरीर का टॉलरेंस बढ़ा लीजिए, रीजनरेशन बढ़ा लीजिए, मेटाबॉलिज्म बढ़ा लीजिए, लिवर को ठीक कर लो, किडनी को ठीक कर लो, हार्ट को ठीक कर लो, उसके बाद जो मर्जी करो, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो कहने का मतलब मैनेज ही कब तक करते रहेंगे? इलाज तो करो, इलाज तो करो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, पर्टिकुलर एकदम फिक्स एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप भी समझ सकते हैं। ये कुंभक बहुत बड़ा आयाम है, इसको मैं समझाना शुरू करूंगा तो मुझे दसियों साल लग जाएंगे इसके ऊपर। ये कुंभक आयुर्वेद का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था जो कि बिल्कुल ही खत्म हो गया। आयुर्वेद का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट बीमारी को ठीक करने का, कुंभक, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। उसको हम रिवाइव कर रहे हैं, उसको हम दोबारा जिंदा कर रहे हैं, क्योंकि पूरी मानव प्रजाति को इसकी अर्जेंटली जरूरत है ना। नहीं तो क्रैश तो आपको कोई रोक नहीं सकता ना। कौन गारंटी ले रहा है आपके घुटने बदलवाने के बाद आप चल ही पाएंगे? कोई गारंटी लेगा क्या? अटल बिहारी वाजपेयी मालूम है ना, घुटने बदलवाने से पहले तो चल पा रहे थे बेचारे, उसके बाद तो चल भी नहीं पाए। अच्छा, कुछ ऐसे लोग मालूम है जिनका किडनी जैसे ही ट्रांसप्लांट किया फिर तो बेचारे गए, रास्ता नाप लिया उन्होंने दुनिया से। तो गारंटी कौन लेगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी? गारंटी तो कोई नहीं लेगा, ना आपका डॉक्टर, ना आपका परिवार, ना आपकी सरकार, ना वो चौधरी अमेरिका जिसको आप रोज पैसा देते हो ताकि आप पे ही राज करे। आप दवाई खाते हैं तो उसको कट जाता है ना, पेटेंट करा रखे हैं, उसको पैसा जाता है। दवाई से तो आप ठीक नहीं होने वाले, लेकिन पैसा आप जरूर दे रहे हो। अच्छा, और बता रहा हूं एग्जांपल, लिवर, किसी को लिवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, जरा उसके पास में जाइए और देखिए उसकी सांस कैसी चल रही है। और दूसरा एग्जांपल क्या लेना है आपने, किसी का किडनी इश्यू है, डायलिसिस चल रहा है, उसके पास जाइए और देखिए उसकी सांस कैसे चल रही है। दो भेद आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? जिसको लिवर का इश्यू है वो लंबी लंबी सांस छोड़ रहा है, जिसको किडनी का इश्यू है लंबी लंबी सांस खींच रहा है। दो भेद बता दिया। अब आपको तरीका बता रहा हूं उसको ठीक करने का, ठीक है? तो 1 यूनिट 5 सेकंड का अगर मानते हैं तो 1 यूनिट इनहेलेशन, 1 यूनिट होल्ड, 4 यूनिट एक्सहेलेशन, ये लिवर के ऊपर असर डालेगा। 4 यूनिट इनहेलेशन, 2 यूनिट होल्ड, 1 यूनिट एक्सहेलेशन, ये किडनी पे असर डालना शुरू कर देगा, यानी किडनी को ठीक करना शुरू कर देगा। कितना टाइम लगेगा डिपेंड करता है किसी के शरीर की हालत पे, कि उसने अपने शरीर की हालत कैसी बना रखी है। 40-50 साल अगर आपने दवाइयां खाई हैं और अगर आप अपने शरीर को 2-3 साल दे देते हो और वो पूरी तरह ठीक कर लेता है, तो क्या ये मैजिक नहीं है? तो आपको केवल टाइम जरूर देना चाहिए। और घुटना अगर आप ट्रांसप्लांट या रिप्लेस करवाना, नी रिप्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आप थोड़ा 6 महीने के लिए मैं आपको बोलूंगा कि अपने शरीर को 6 महीने के लिए मौका दे दीजिए। अगर आपको इंप्रूवमेंट लगता है तो हो सकता है कि ज्यादातर केसेस में हो सकता है कि आपको ट्रांसप्लांट या फिर रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं पड़े। और नेचुरल घुटना जो है ना, वो किसी भी हालत में आपके लिए ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि घुटना तो जैसे दांत है, दांत तो आप चेंज करवाते जाओ वो तो बिल्कुल ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि वो एक बार वो दोबारा पैदा होता है ना, दोबारा पैदा होता है और उसके बाद नहीं होता। मगर घुटने के साथ में ऐसा नहीं। शरीर के कुछ ऑर्गन्स के साथ में ऐसा है जिसको आप रिप्लेस करवा सकते हैं, जो इरिप्लेसेबल है। अगर उसको रिप्लेस करते हैं तो प्रॉब्लम है। घुटने के साथ में प्रॉब्लम है, थोड़ी प्रॉब्लम है। कई लोगों को सूट करेगा और कई लोगों को नहीं करेगा। तो आप नेचुरली इसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। तो केवल घुटने की तरफ देखेंगे तो आप घुटने की प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे। तो कहां देखा हमने? मेटाबॉलिज्म, लिवर की तरफ में देखा। और कहां देखा? इसी का दूसरा पक्ष, जैसे मैंने बताया कि आपके शरीर के अंदर जब आप प्रेशर क्रिएट करके ही मूवमेंट कर, बिना प्रेशर के मूवमेंट नहीं होता। तो जब आप अंदर प्रेशर को
करेक्ट करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपकी मूवमेंट हो जाएगी बहुत बढ़िया। ये हमारे सैकड़ों लोगों, हजार, बल्कि हजारों लोगों का एक्सपीरियंस है अब तो। वो कहते हैं कुंभक करना शुरू किया, एनर्जी बढ़ गई, हम ज्यादा काम कर पा रहे हैं और हमारे शरीर में कोई बीमारी जल्दी नहीं हो रही है, हमारे अंदर से हमें मन अच्छा लग रहा है, मेंटल इश्यूज चले गए, सो नहीं पा रहे थे, सो पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन। How Kumbhak will help in knee joint pain stiffness? Madan Lal. अभी कितने बार बोले, कितने बार बोले, नी जॉइंट पेन सब बोल तो दिया अभी। हाँ, किसी और तरीके से बताऊं? चलो और तरीके से बता देता हूं। मगर क्या है कि आप कितना भी ज्ञान अर्जित कर लीजिए, आप ठीक नहीं होने वाले। आपने तो सारा गूगल भी अगर छान लिया होगा, अगर गूगल भी सारा अपना दिमाग में भर लें, तो आप ठीक नहीं होने वाले। कैसे ठीक होंगे? थोड़ा काम करके ठीक होंगे अपने शरीर पे। चलो दूसरे तरीके से, ऐसे में 1000 तरीके से आपको समझा सकता हूं। प्रॉब्लम यह है कि आपने कभी इस तरीके से सुना ही नहीं। तो शरीर के ऊपर का हिस्सा जो होता है ना, वो कफ प्रकृति का होता है। मिडिल पार्ट, चेस्ट से ऊपर का, चेस्ट से कमर तक का हिस्सा होता है, वो पित्त प्रकृति का होता है, और कमर से नीचे का हिस्सा वात प्रकृति का होता है। तो आपका शरीर का पूरा मूवमेंट जो है ना, आपके पांवों पे ज्यादा डिपेंड करता है, पूरी बॉडी का मूवमेंट, ठीक है ना, पूरे पांव के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। तो आपका कमर से नीचे का घुटना जो है ना, वो आपकी वात प्रकृति को डिनोट करता है, दिखाता है, ठीक है। तो वात का मतलब होता है मूवमेंट। वात का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। क्योंकि अब आपने अंग्रेजी ज्यादा या ग्रीको रोमन शब्दावली ज्यादा सुनी हुई है, अब आप संस्कृत शब्द को कोरिलेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वात का मतलब बहुत लोग वायु कहते हैं, वायु का मतलब मूवमेंट होता है। जरा इसको ध्यान से समझिए। तो मूवमेंट 3 चीजों के साथ में आपके शरीर में होता है, नसें, मसल्स और हड्डियां, ठीक है ना। अब इसको और बाइफरकेट करेंगे तो पता चलेगा, जो हड्डियां हैं ना, वो वात होती हैं, हड्डियां ज्यादा वात प्रकृति की होती हैं। मसल आपके जो है ना, वो पित्त प्रकृति के होते हैं, और नसें जो है ना, वो कफ प्रकृति की। और डिफाइन कर, फिर उसको और डिफाइन कर सकते हैं, लेयर बाय लेयर हम डिफाइन कर सकते हैं। मगर आयुर्वेद में भी बहुत रिसर्च की जरूरत है। आयुर्वेद को भी आजकल एलोपैथी की तरफ पढ़ाया जा रहा है, उसी के साथ कंपटीशन करने की जरूरत, वो कोशिश की जा रही है। अब देखो, एलोपैथी में किसी बीमारी का रीजन नहीं मालूम उनको। डायबिटीज क्यों होती है? पता नहीं। भाई इंसुलिन कम हो गया, इंसुलिन कम क्यों? पता नहीं। ब्लड प्रेशर क्यों होता है? पता नहीं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है? पता नहीं। घुटने क्यों खराब हो गए? जी घिस गया, दिख तो रहा है घिस गया, क्यों घिसे? पता नहीं। अंदाजा लगाएंगे सब। तो एलोपैथी में किसी भी बीमारी का उनको पता नहीं होता, कम से कम आयुर्वेद में तो पता होता है। अरे ऐसे भी देखें तो आयुर्वेद ज्यादा सटीक है ना, आपको क्लियरली बता सकते हैं ये वात कफ दोष है, ये पित्त कफ दोष है, या पित्त वात दोष है, एग्जैक्टली बता सकते हैं। तो अब वो कॉम्पीट कर रहे हैं एलोपैथी के साथ में, जिसको कि किसी चीज का कुछ पता नहीं। अब इतनी बड़ी विडंबना देखिए, इतना नीचे का स्तर पे गिर गए हम लोग कि जो सटीक पद्धति है उसको हम कॉम्पीट किससे करवा रहे हैं, जिसको कुछ नहीं मालूम। सर्जरी आपको समझना पड़ेगा, एलोपैथी का हिस्सा नहीं है, वो आयुर्वेद का हिस्सा है, लेकिन एलोपैथी ने उसको खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया। तो ये सब चीजें ना हमको लेके आनी पड़ी, आयुर्वेद पे बहुत काम करने की जरूरत है। अच्छा, वात प्रकृति। अब वात प्रकृति को मैं थोड़ा सा आपके लिए डिफाइन कर रहा हूं, समझ में? आपके लिए मैं डिफाइन कर रहा हूं, बहुत ज्यादा गहरे जाऊंगा आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा। समझ भी लेंगे तो भी ठीक नहीं होंगे, काम करने से ठीक हो जाएंगे फट से। अब वात को रोकने का आपको मैं तरीका, मूवमेंट को कंट्रोल आप कैसे करते हैं, ठीक है ना, जरा एक्सपेरिमेंट करके समझेंगे सभी। तो मूवमेंट है ना, किसी शरीर का कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो उसको कंट्रोलिंग फैक्टर कहां पे है, जरा ये पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो उंगलियों को फंसा लीजिए, जरा खींचने की कोशिश कीजिए, मूव करने की, खींचने की कोशिश कीजिए, जोर से खींचने, जोर लगाइए, देखिए कैसे जोर लगा रहे हैं। सांस को रोक रहे हैं, सांस को रोकते हैं। अच्छा, पुश करने की, धक्का देने की कोशिश कीजिए, धक्का देने की कोशिश कीजिए, जोर से धक्का देने की कोशिश कीजिए। कैसे मूवमेंट को कंट्रोल, ये जो जोर लगा रहे हैं आप, इसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? सांस रोक रहे हैं। वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, क्लाइंबिंग स्टेयर केसेस, डूइंग हाउस होल्ड वर्क,
अलग अलग अनुपात में सांस रोक के ही कर पाते हैं। तो कोई भी मूवमेंट आप कैसे करते हैं? ब्रेथ होल्ड करके किसी भी मूवमेंट को या किसी भी एक्टिविटी को अंजाम देते हैं आप। ये बात गांठ बांध लीजिए। तो वात को यानी मूवमेंट को कंट्रोल करने का फैक्टर क्या है? सांस को रोकना। वो कुंभक ही है जो आपके मूवमेंट को कंट्रोल करता है, वात को कंट्रोल करता है। वात को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका कुंभक है। ये आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आसान है ना समझना, इतना तो मुश्किल नहीं है। और मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स करूंगा तब मुश्किल होगा, मगर इतना तो आसान है सबके लिए समझना। तो वात को कंट्रोल करने के लिए बाहर से अगर दवाइयां लेते हैं आप, सपोज कीजिए आयुर्वेद की भी जड़ी बूटियां लेते हैं, तो वो इतना काम नहीं करेंगी। लेकिन कुंभक के साथ वही जड़ी बूटी लेते हैं तो 100 गुना 1000 गुना ज्यादा काम करेगी। तो मेन जो पार्ट है वही गुम गया आयुर्वेद का। आयुर्वेद का मेन पार्ट कुंभक ही गुम गया। 92% आयुर्वेद लुप्त हो चुका है, 8% ही बाकी है, जिसका 2% जड़ी बूटियां। तो आयुर्वेद को हमें रिवाइव करना पड़ेगा। आप अपने शरीर का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ये इतना मुश्किल नहीं है समझना। आप लोग समझदार हो, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आप भारतीय हैं, आपके पूर्वज भारतीय थे, इसीलिए आप समझदार हो। अब प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आपको क्वीन एलिजाबेथ ने पढ़ाई करवा दी कुछ। जब तक आप चीजों को गहराई से नहीं समझेंगे तब तक आप समझिए, साइंस के नाम पे कुछ भी बोल रहे हैं। एलोपैथी के आगे साइंस लगा दिया है। साइंस है क्या वो? जिसको किसी बीमारी का पता ही नहीं उसको आप साइंस कह सकते हो क्या? नहीं तो आप गूगल जाके ढूंढिए कि उनको क्या किस बीमारी का पता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है, पता ही नहीं। ऐसी चीजों को आप साइंस बोल सकते हैं क्या? लेकिन साइंस के नाम पे आजकल सब कुछ बिकता है, तो मार्केटिंग का अच्छा तरीका है। कोई बात नहीं, इमरजेंसी मैनेजमेंट में जो भी चीज इस्तेमाल करो अवेलेबल है, वो चलता है, वो चलेगा, मगर ट्रीटमेंट तो कर लीजिए। ट्रीटमेंट तो कर लीजिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपके सिम्टम कम हो जाएंगे, आगे आने वाले टाइम में बीमारी आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये तो करना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Kripti ma'am talks about how to heal intercostal neuralgia. इंटरकोस्टल, वही मैं कहना, ग्रीको रोमन शब्द नामकरण आप ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया आपको समझ में ही नहीं आता। आप कुछ नाम रख दो ना, पप्पू चप्पू टप्पू जैसा, नाम में क्या रखा है? ठीक तो करते नहीं। इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया बोल दिया, नाम ठीक करो तो सही। नहीं जी, ठीक नहीं करते, हम तो नाम ही रखते हैं बस। भारत में आए, यहां पे नाम रख दिया, कहते हमने डिस्कवर किया जी। अमेरिका गए, कहते हमने डिस्कवर, उससे पहले तो लोग ही नहीं रहते थे यहां जैसे। मतलब इतनी बेवकूफी को अब यू विल हैव टू कॉल इट आउट। यू विल हैव टू कॉल इट आउट। आपको बोलना पड़ेगा, ये क्या कर रहे हो यार? नाम भी रख लो भाई, कम से कम संस्कृत नाम रख देते, हिंदी नाम रख देते, है ना। तो इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया जब कहते हैं तो ये बेसिकली एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज है। नसें आपकी रीजेनरेट नहीं हो पा रही, घिस मतलब वो मर रही हैं, सेल्स उसके मर रहे हैं, मगर वापस पैदा नहीं हो रहा। मैं आपको इसी चीज को 1000 तरीके से समझा सकता हूं, मोर देन 1000 तरीके से आपको समझा सकता हूं, लेकिन आपको एलोपैथी में जाके केवल एक ही डेफिनेशन मिलेगा, और उसके बाद उनको यह नहीं मालूम कि वो क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है जी? पता नहीं। इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया क्यों हो रहा है जी? ये नहीं बता सकते हैं। क्या ट्रीटमेंट है? नहीं जी, इसका ट्रीटमेंट तो नहीं है। अब इतना मतलब यू हैव टू कॉल इट आउट समवेयर। आपके डॉक्टर आपसे बताते ही नहीं, आप पूछते ही नहीं अपने डॉक्टर से। तो क्या न्यूरो रीजनरेशन हो सकता है? सवाल क्या है? असली सवाल क्या है? मुझे इंटरकोस्टल न्यूरल्जिया हो गई, ये असली सवाल नहीं है। ये तो आपको किसी ने बता दिया। असली सवाल क्या है? जब आपको पता चलेगा ये क्या है, डीजेनरेशन है, नसों का डीजेनरेशन। तो क्या रीजेनरेशन हो सकता है? असली सवाल ये है।
तो क्या ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनका न्यूरो रीजनरेशन हो गया? हमारे पास में ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। मैं आपको कितने एग्जाम्पल बताऊं? एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनका आधा शरीर पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस समझते हैं ना? नसें काम नहीं कर रही। उन्होंने कुंभक करना शुरू किया, 6 महीने में 95% रिकवर हो गया। क्या आपको ये चमत्कार दिख रहा है? मगर ये चमत्कार नहीं है, ये आपके शरीर की काबिलियत है। आपका शरीर रीजनरेशन करता ही है। अच्छा, एक मैराथन रनर हमारे पास में आती है और पूछती है, स्वामी जी क्या मैं दोबारा से मैराथन दौड़ पाऊंगी, क्योंकि मुझे मना कर दिया गया, अब आपकी लाइफ खत्म, मैराथन खत्म आपकी लाइफ से। तो मैंने कहा 1 साल दे सकते हो? कहती है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आप जितना बोलोगे उतना दे सकते हो। मैंने कहा बस 1 साल दे दो, आप दोबारा से 1 साल बाद मैराथन दौड़ना शुरू करना, प्रिपेयर करना। वो 6 महीने में प्रिपेयर करने लग गई। माइसीना ग्रेविस, ड्रॉप फुट, फ्रोजन शोल्डर, न्यूरो डिजेनरेशन, डायबिटिक न्यूरोपैथी, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास में जहां पे रीजनरेशन उनका शुरू हो गया। ठीक है, तो पहले मैंने एग्जाम्पल बताया। दूसरी बात मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं आपको और गहराई से बता सकता हूं कि ये कैसे रीजनरेट होता है। मगर क्या है कि क्या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करवाएंगे मुझसे? इतना भी समझ के कहां जाएंगे? ठीक तो नहीं हो पाएंगे। समझ भी जाए तो काम करेंगे शरीर के ऊपर तो ठीक हो जाएंगे। पहली बात, एक सिंपल तरीके से मैं बताऊं आपको, जब भी आपको अपना रीजनरेटिव प्रोसेस को एक्टिवेट करना है, जब भी करना है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। इसमें थोड़े लूप होल्स हो सकते हैं, क्योंकि मैं इसको और डिफाइन करूं, 2-4 घंटे में समझाऊं तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपके शरीर के हर एक ऑर्गन में स्टेम सेल्स होते हैं, मगर वो डॉर्मेंट होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते। वो वेट कर रहे हैं कि आप मुझे ट्रिगर दो और मैं एक्टिव हो जाऊं। वो ही ट्रिगर, उसको एपिजेनेटिक ट्रिगर कहते हैं। एपिजेनेटिक ट्रिगर। और वो ही एपिजेनेटिक ट्रिगर कुंभक है, क्योंकि यही प्रेशर ग्रेडियंट जो है, जो कि एक एपिजेनेटिक ट्रिगर की तरह काम करता है, ये आपके जेनेटिक्स को चेंज करता है। तो हम उस कुंभक की बात कर रहे हैं जो कि आपके जेनेटिक्स को चेंज करने का तरीका भी है, और यही रीजनरेटिव एक्टिविटी को एक्टिवेट भी करेगा, स्टेम सेल को एक्टिवेट भी करेगा, मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट भी करेगा, और इस तरीके के कई बीच में जो स्टेप्स हैं जिसकी वजह से आपके जेनेटिक्स में बदलाव आता, आपके शरीर में बदलाव आता, उन सब पे असर डालेगा। तो क्योंकि ये आपके रीजनरेटिव एक्टिविटी यहां तक कि जेनेटिक्स को थोड़ा ट्रिगर दे सकता है, तो आपके शरीर में रीजनरेटिव एक्टिविटी को रिवाइव कर सकता है। अगेन दोबारा से एम्फेसिस किस पे डालना चाह रहा हूं, टाइम अलग अलग लग सकता है, क्योंकि आपने अपने शरीर के साथ में टॉर्चर बहुत किया हुआ है ना? आपने ट्रीटमेंट के नाम पे अपने शरीर के साथ में बहुत टॉर्चर किया हुआ है। इसलिए इसके रिकवरी का स्ट्रेंथ, इसके 6 बेसिक स्ट्रेंथ होते हैं: देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। जब हम कुंभक कर रहे हैं तो ये 6 अलग अलग बलों को स्थापित करके 6 अलग अलग मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट कर रहे हैं, 7 अलग अलग टिश्यूज फॉर्म कर रहे हैं आपके शरीर के: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और 8 अलग अलग क्वालिटीज, 8 अलग अलग क्वालिटीज, टिश्यू क्वालिटीज को रीस्टैब्लिश कर रहे हैं। इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? अष्टांग चिकित्सा। अगला क्वेश्चन। Okay. Kashvi ma'am talks about lordosis and spine bulge. स्पाइन बल्ज,
अच्छा, अगेन एक्सपेरिमेंट करो। जब तक आप अपने दिमाग में एक अंदाजा नहीं लगाएंगे कि ये इस तरीके से होता, वो उस तरीके से हो, तब तक आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे और राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो आप चपटे चपटे पत्थर लेके आइए और उस पर बीच में ड्रिल कर लो, एक रस्सी घुसा दो, 33 स्टोन्स उसके ऊपर रस्सी घुसा दो। ये आपकी रीढ़ की हड्डी बन गई। रीढ़ की हड्डी सीधी कब रहेगी? जब रस्सी खिंचा रहेगा। जहां रस्सी ढीली हुई, रीढ़ की हड्डी फिसलने लग जाएगी, एक दूसरे के पत्थर एक दूसरे के ऊपर फिसलने लग जाएंगे, जिसको आप क्या कहते हो? स्लिप डिस्क। तो आप ऑपरेट करा लेंगे स्लिप डिस्क का, मगर क्या वो जो तनाव था रस्सी का, वो जो खिंचाव था, वो जो स्ट्रेंथ था, उसको रिस्टैब्लिश किया आपने। तो जब आप एक स्लिप डिस्क का ऑपरेशन कराएंगे तो दूसरी जगह स्लिप हो जाएगा, तीसरी जगह स्लिप हो जाएगा, चौथी जगह स्लिप हो जाएगा। क्या ये एक्सपीरियंस नहीं है आप लोगों का जिनको ये प्रॉब्लम है? तो आप इलाज तो कर ही नहीं रहे, मैनेजमेंट ही करते रहेंगे तो आपकी लाइफ नहीं सुधरने वाली। आप ये गांठ बांध लीजिए अपने माइंड में, अपने दिमाग में। तो ये जो स्ट्रेंथ है, इसके खिंचाव का, इसको मैं दो तरीके से समझा रहा हूं। ध्यान दीजिए, दो तरीके से समझा रहा हूं। ये स्केलेटल स्ट्रेंथ कहेंगे, इसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कहेंगे, कोई भी नाम रख दो। जैसे मैंने बताया, नाम आप अपने मर्जी से रख दो, सहूलियत से रख दीजिए। तो अब ये स्ट्रेंथ है क्या आपके शरीर का? तो मैं आपको जैसे मैंने बताया 1000 तरीके से बता, एक तरीके से जिससे आप क्लियरली समझ सके, एकदम से समझ सके। तो सांसों पे लेके आता हूं, इसको सांस पे लेके आता हूं। ये स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ योर ब्रेथ है क्या? इसे व्यान शक्ति कहते हैं। इसको नाम रख दिया अब मैंने, क्या नाम रखा? व्यान शक्ति। आपके स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, हड्डियों की शक्ति अपने स्ट्रक्चर में बने रहने की व्यान शक्ति कहते हैं। तो ये क्या है सांसों के टर्म्स में, क्या शक्ति है? तो एक काम करें, अगर आप 5 सेकंड को एक यूनिट मानते हैं, ये जो भी आप सांस लंबा जितना भी ले सकते हैं उसको एक यूनिट मान लीजिए। सपोज कीजिए आप 8 सेकंड की सांस खींच सकते हैं, तो क्या आप 4 गुना ज्यादा रोक सकते हैं? यानी 32 सेकंड का रोकना पड़ेगा, 32 सेकंड का रोकना पड़ेगा। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, व्यान यहां पे नहीं रुकता। व्यान क्या है? अगर आप 16 सेकंड का एक्सेल कर सकें उसके बाद बिना परेशान हुए, तब आपकी व्यान शक्ति अच्छी है, तब आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ अच्छा है। आप यहां पे जितने भी लोग हैं, एक भी नहीं कर पाएगा, एक भी नहीं कर पाएगा। इतने आसान शब्दों में बता दिया और आप लोग बुद्धिमान हैं, तो अब आपको पता चल गया होगा इसको बढ़ाना कैसे। प्रैक्टिस करके, सिंपल। लेकिन ये पूरा गेम नहीं बताया मैंने आपको, पूरा मॉडल नहीं बताया, एक ही चीज बताई अभी। तो जब अष्टांग चिकित्सा करेंगे तो ये होलिस्टिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें डायग्नोसिस है आपकी कौन सी शक्ति कमजोर, फिर नंबर दिए जाते हैं आपको। ठीक है ना? एक तरीके से समझाया अभी आपको, इसी से पता चल जाता है कि कहां काम करना है। दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। आपको मालूम है वो बंदा न्यूटन जो था, हालांकि हमारे देश में 5000 साल से गुरुत्वाकर्षण का मालूम था हमको, ग्रेविटी। लेकिन अब कहते हैं अंग्रेजों ने सारी दुनिया ही ढूंढी है। जब वो पैदा ही हुए 2500 साल पहले, हम तो लाखों साल पहले पैदा हुए थे, मगर उन्होंने ढूंढा है 2500 साल पहले पैदा होके सारी दुनिया। तो वो कहते हैं कि भाई न्यूटन ने ग्रेविटी खोजी, उससे पहले तो ग्रेविटी थी नहीं, उससे पहले तो सब लोग ऊपर ही लटकते रहते थे, स्वर्ग में ही रहते थे, है ना? तो न्यूटन ने कैसे ढूंढा कि एप्पल गिरा नीचे पेड़ से और कहता अरे एप्पल तो नीचे खींच रहा है, ग्रेविटी है खींच रही। लेकिन उसको किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि भैया ये पेड़ क्यों ऊपर उठ गया? अगर ग्रेविटी ही सब कुछ थी तो पेड़ क्यों ऊपर उठ गया? एक इंसान, छोटा बच्चा ऐसे क्यों लंबा हो जाता है, ऊपर क्यों चला जाता है? ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है कि नहीं? यानी कि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ जोर लगा रहे होंगे कि नहीं लगा रहे होंगे? लगा रहे होंगे।
तो इसे ऊपर उठने वाला जोर जो आपके शरीर का है उसे क्या कहते हैं? तो उसको मैं अब अपने नाम से रख रहा हूं। ये देखो, ये सब नाम ना अंग्रेजी नाम छोड़ दीजिए, इन्होंने दुनिया बर्बाद कर दी। अब फिरंगियों के अब आप गुलाम बनना बंद कीजिए, आप लोग ज्यादा समझदार। तो ये क्या है? इसे कहते हैं उड़ान। उड़ान नाम सुना होगा ना, उड़ना, टू फ्लाई, उड़ना, उड़ान, उठना, ठीक है ना? तो ये ऊपर उठने की शक्ति है आपके शरीर की, इसे कहते हैं उड़ान। और आपके शरीर में एक फैक्टर है जो उड़ान को कंट्रोल करता है, आपका स्ट्रेंथ ऑफ इनहेलेशन, सांस खींचने की शक्ति, यही उड़ान शक्ति है। ठीक है? अब मुझे बताइए, अगर धुएं, एक डीजल का ट्रक हो, धुआं निकाल रहा है, आप वहां से गुजर रहे हैं, सांस कम लेते हैं ज्यादा लेते हैं? कम लेते हैं ना? रोक लेते हैं सांस को, रोक लेते हैं ना? अच्छा, अगर एनवायरनमेंट खराब हो तो सांस रुक जाती है, कम हो जाती है ना? क्या एनवायरनमेंट खराब नहीं हो गया हमारा? क्या पॉल्यूट नहीं हो गया एनवायरनमेंट हमारा? तो आप नेचुरली कम सांस ले रहे हो कि नहीं ले रहे? आपको शायद पता नहीं चल रहा, आप नेचुरली सांस कम ले रहे हो। अगर नेचुरली सांस आप कम ले रहे हैं तो इस पे काम करने की जरूरत तो सभी को है कि नहीं है, ताकि ये उठने। इसीलिए आजकल बच्चों को देखो, वो सीधे नहीं बैठ पाते, खड़े होने में तकलीफ है, बैठेंगे फिर लेटेंगे, ऐसे पीठ टिका लेंगे, उसके बाद में लेट जाएंगे। ये बाकी सब लोगों के साथ भी हो रहा है, क्योंकि उड़ान शक्ति सभी की कम हो रही है। यही उड़ान शक्ति आपके मेंटल स्टेट को भी डिनोट करता है। अब उसमें डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएंगी, मगर हमने क्या कहा कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ तो बढ़ाना ही है ना, सबको जरूरी हो गया। तो ये दो चीज बताया, व्यान शक्ति, उदान शक्ति। क्या इन दोनों को हमें नहीं बढ़ाना होगा? अगर नहीं बढ़ाएंगे तो क्या ट्रीटमेंट कहलाया जाएगा? वो ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ ना, मैनेजमेंट हो गया। थोड़ी दर्द की दवाई खा के आपने दर्द को काट दिया, रेड लाइट तोड़ दिया, तो चलो ठीक है, आप नहीं मानना चाहते रेड लाइट को, कभी कभी उसको भी मान लेते हैं अगर हम, तो फिर भी ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ ना। तो ट्रीटमेंट करिए अपने शरीर का। आपका शरीर बहुत केपेबल है, उसकी केपेबिलिटी को बढ़ाएं, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, उसकी रिकवरी की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, और आप देखेंगे आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे बस अभी। Rajkumar Nahar, sir, you can ask your question. Please unmute. Rajkumar Nahar, sir. हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मेरा अभी स्लिप डिस्क का ऑपरेशन हुआ 29 अप्रैल को। देयर वाज प्रॉब्लम इन वॉकिंग, टिंगलिंग इन द दोनों पाँव में टिंगलिंग होता था, नमनेस आता था, और वो पूरा 24 घंटा माने सोने के बाद भी। तो उसके लिए काफी दिन मेडिकेशन करके, एक्सरसाइज करके, फिजियोथेरापी करके कुछ हुआ नहीं, इसलिए लास्ट अभी रिजल्ट बोल के ऑपरेशन किया। तो ये ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बोले थे कि कुछ परसेंटेज वो कम हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नाउ 1.5 month, देयर इज नो रिजल्ट एज एट। एक 5% भी कुछ उसका फायदा नहीं हुआ। इट वॉज अ बिग मेजर ऑपरेशन एट द एज ऑफ 70। और ये मेरा ऑपरेशन 2005 में भी हुआ था, L4 और L5 और S1। अच्छा, ठीक है। अभी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए? हाँ, अभी तो नमनेस। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ सब प्रॉब्लम आता है। एक चीज तो, एक पक्ष मैंने इसके पहले जो आंसर किया उसी में मैंने ले लिया कि आपको दो चीज बढ़ाना है अपने शरीर का, उदान शक्ति, व्यान शक्ति बढ़ाएंगे तो आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, रीढ़ की हड्डी में स्ट्रेंथ आएगा और काफी प्रॉब्लम निकल जाएंगी। दूसरा पक्ष इसका अब मैं बता रहा हूं, आपके शरीर में 3 तरीके के अलाइनमेंट चाहिए होते हैं। हाँ जी, ठीक है, 3 तरीके का अलाइनमेंट चाहिए होता है। इसको हम देसी भाषा में कहते हैं नाभि, कौड़ी, नले। अब इसको मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि बिफोर यू गो टू एनी डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर को अलाइनमेंट थोड़ा बहुत आइडिया होगा मगर वो अलाइनमेंट नहीं करवाता।
हाँ फिजियोथेरेपी में खींच खाच के अलाइनमेंट कराने की कोशिश करते हैं बाहर से जोर लगा के, कई केसेस में हो जाता है, कई केसेस में नहीं हो पाता। हाँ सर। तो दोबारा से मैं एक चीज एम्फसाइज करने की कोशिश करूंगा, द अलाइनिंग स्ट्रेंथ इज योर बॉडी स्ट्रेंथ। या दोबारा से बोल रहा हूं, अलाइनिंग स्ट्रेंथ इज योर बॉडी स्ट्रेंथ। ना हाँ सर। तो दवाई लेके, ना तो भोजन लेके, ना बाहर से जोर लगा के आप ये स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। ये बात आप समझ जाइए। हाँ सर। बाहर से ना दवाई खा के, ना अच्छा भोजन खा के, ना बाहर से जोर लगा के आप इस स्ट्रेंथ को आप अलाइनमेंट कर दोगे। फिजियोथेरेपी में अलाइनमेंट कर देंगे, अलाइनमेंट की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा पाएंगे वो। हाँ जी, हाँ जी, दोनों में फर्क बताने की आपने खींच के अलाइनमेंट कर दिया, हाँ जी, ठीक है, लेकिन उसको बरकरार रखने के लिए आपकी बॉडी का अलाइनिंग स्ट्रेंथ, अलाइनमेंट का स्ट्रेंथ होना जरूरी है। हाँ जी, ठीक है। अब तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज आप करंट मेथोडोलॉजी ऑफ ट्रीटमेंट में कर ही नहीं रहे। हाँ। और दूसरा एक बताना था, जस्ट आई एम इंटरप्टिंग, माय लेफ्ट लेग हैड a balancing rod and ball replacement in 2013, and naturally there is a 2 centimeter difference between Yeah. both the leg. हाँ, डिफरेंस है। हाँ, और उसकी वजह से अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो सिलिकॉन का शूज यूज करो, और उससे तो मुझे तकलीफ हो गई, मैंने वो यूज करने के बाद। हाँ, मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं उस पे एक एक स्टेप करके आ रहा हूँ, मैं वो भी उसका आंसर आ जाएगा इसके अंदर। हाँ जी। तो इसका मतलब पहली चीज मैंने क्या आपको बताने की कोशिश की, और जो आपको क्या समझना है कि आपके बॉडी का अलाइनिंग स्ट्रेंथ होता, अलाइनमेंट का स्ट्रेंथ होता, उसको रिकवर, उसको दोबारा स्थापित करना, अगर कमजोर हो जाए स्थापित करने की जरूरत होती है। इसके अलावा अच्छा, कुछ लोगों का एक्टिविटी ऐसा होता है, शरीर का एक्टिविटी या शरीर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बार बार डिसअलाइनमेंट हो जाता है। जैसे स्पोर्ट्स के लोगों में, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनके बॉडी में अगर अलाइनमेंट नहीं बरकरार रखा जाए तो उनको स्पोर्ट्स इंजरी बहुत जल्दी होती है, जो कि आजकल के एथलीट्स और स्पोर्ट्स के लोगों में आपको देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी स्पोर्ट्स इंजरी होती है उनको। दूसरी चीज, अगर आपके शरीर में बाय बर्थ या फिर बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट इंसिडेंट अगर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, तो आपके शरीर में डिसअलाइनमेंट फ्रीक्वेंट हो जाएगा, बार बार होगा। तो ऐसा कोई प्रोसेस आपकी दिनचर्या या लाइफस्टाइल में होना चाहिए। जैसे कि गाड़ी को जब हम ऊबड़ खाबड़ जगह में ले जाते हैं तो व्हील अलाइनमेंट करवाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें भी अपने दिनचर्या, ऐसे लोग जिनका फ्रीक्वेंटली डिसअलाइनमेंट होने का चांस ज्यादा है, उनको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा रखना चाहिए कि रोज या कम से कम हफ्ते में 2 बार 3 बार वो अलाइनमेंट करते जाएं, और फिर देखेंगे उनकी प्रॉब्लम होनी कम हो जाएगी। तो 3 तरीके की अलाइनमेंट बताया मैंने, नाभि, कौड़ी, नले। ये क्या होती है? नाभि का मतलब जब भी आपके पांव में ऊपर नीचे, एक पांव लंबा एक पांव छोटा, एक हाथ लंबा एक पांव हाथ छोटा, या आप अगर पोस्चर ठीक नहीं रख के कोई हैवी वर्क करेंगे तो नाभि, जो कि आपके बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, है ना, उसका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। नाभि का अलाइनमेंट बिगड़ा, मेटाबॉलिज्म को आप रोक नहीं पाओगे, बिगड़ जाएगा, आपके बॉडी में रीजनरेशन डीजनरेशन बिगड़ जाएगा, और ये बहुत सारी प्रॉब्लम, इम्यूनिटी, इवन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा अलाइनमेंट जो होता है वो कौड़ी होती है, छाती का मिडिल पार्ट जो होता है, नीचे की तरफ में देखेंगे तो एक छोटी सी हड्डी निकली हुई है बीच में, वो कौड़ी कहलाती है। और छाती का अलाइनमेंट अगर आपका नहीं होगा तो 2-3 चीजें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। एक तो ये लंग से रिलेटेड कोई भी इशू, फेफड़ों से रिलेटेड कोई भी इशू आपके लाइफ में जल्दी आ जाएगा। जैसे कि ऐसे लोग जिनका अलाइनमेंट ठीक नहीं होता, उनको बहुत जल्दी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, उनको अस्थमा होने के चांसेस हो सकते हैं, ILD हो सकता है, और इस तरीके के जो भी आपने नाम गूगल में आप टाइप करके देख लीजिए। दूसरी चीज, हार्ट एंड लंग, ये दोनों जुड़े होते हैं, लंग और हार्ट के साथ में भी इश्यूज आ सकते हैं।
2018 में मेरा बाईपास हो गया सर। हाँ, तो ये दूसरी चीज, दूसरा अलाइनमेंट बताया मैंने। तीसरा अलाइनमेंट होता है, आपने देखा होगा जो पहलवान लोग होते हैं ना, वो अपनी जांग को ठोकते हैं। हाँ जांग को ठोकते हैं, तो जांग का इनर हिस्सा जो होता है ना, वो आपके पूरे के पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को अलाइन करता है, फिजिकल स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट होता है। यानी कि आपके जांग का जो मिडिल अंदरूनी हिस्सा है, उसको नले कहते हैं, अगर वो उसमें स्ट्रेंथ नहीं है तो आप देखेंगे मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाएगा, स्केलेटल स्ट्रेंथ भी नहीं रहेगा, और इससे रिलेटेड स्पाइन इश्यू, कंधों के साथ में इश्यू, सर्वाइकल इश्यू, लंबर इश्यू और पता नहीं क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। हाँ जी। तो 3 अलाइनमेंट बताए मैंने, तीनों ही अलाइनमेंट हमने अपने प्रोग्राम में बिल्ड इन किया हुआ है। ओके। बिल्ड इन किया हुआ है, आपको केवल वो प्रोग्राम करना है, उसी के अंदर वो तीनों अलाइनमेंट होता जाएगा। तो ओके। अगर आप इसे अपनी दिनचर्या में लेके आ जाएंगे तो आपको कोई व्हील अलाइनमेंट के वर्कशॉप पे जाने की जरूरत नहीं होगी बॉडी अलाइनमेंट कराने के लिए। वैसे होता नहीं है कोई जगह बॉडी अलाइनमेंट कराने के लिए, करेक्ट, तो अभी आपको तक घर किया। हाँ, तो आपको घर को ही हम बना देंगे आपके पूरे बॉडी को अलाइनमेंट करने का अड्डा। आप घर में ही आराम से कर लेंगे। बहुत सिंपल से प्रोसेस और पावरफुल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हाँ। आपको बहुत लंबा समय कुछ करना होगा, कोई वेट डाल के आपके रीढ़ की हड्डी को अलाइन किया जाएगा, या पाँव को खींच के, या स्ट्रेंथ डाल के, या उसमें कोई स्प्रिंग डाल के, या ऐसा स्ट्रेच डाल के किया जाएगा, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे भी इंपॉर्टेंट तरीका जो पहली बार बताया, आपके बॉडी का अलाइनमेंट का स्ट्रेंथ जैसे ही बढ़ेगा, डिसअलाइनमेंट होना कम हो जाएगा। एक टाइम पे आपकी बॉडी अलाइन नहीं होगी, चाहे कितना ही लोड डाल दीजिए। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पूरे सिस्टम को एम्पावर कर देंगे। ये करना जरूरी है। ऐसे लोग जिनके साथ में इश्यूज हुए, ऑपरेशन हुआ, उनको रिहैबिलिटेशन जो कहते हैं, वो अभी प्रॉपर रिहैबिलिटेशन नहीं है। ये प्रॉपर रिहैबिलिटेशन है, आपके बॉडी के स्ट्रेंथ फैक्टर्स को वापस लेके आना, सच का रिहैबिलिटेशन है। एक बात कहूं, कितनी भी एज हो जाए आपकी एक्टिविटी ऐसी होगी जैसे कि जवान लोगों की एक्टिविटी होती है। लेकिन सर मेरे इसमें मेजर ऑपरेशन हुए, 2 बार लंबर का, 2 बार वो। और जरूरी है, जितना मेजर ऑपरेशन हुआ उतना रिहैबिलिटेशन जरूरी है, आप ये समझिए। ओके, लेकिन इससे होगा हाँ, इससे होगा, कुंभक से होगा। कुंभक सबसे आसान तरीका है अपने बॉडी के स्ट्रेंथ फैक्टर्स को वापस रिकवर करने का। और दिस इज हैज टू बी डन रेगुलरली। It has to be done regularly till you come out of your problem. Technically, till you come out of the problem, you have to do it regularly. After that, you can drop. But I would rather say कि you would not want to drop even after recovery. Because I am habituated to. तो कई लोग हमारे पास में आते हैं, वो कहते हैं कि कितने टाइम करें। मैं कहता हूँ 6 महीने तो करो कम से कम, और वो 6 महीने के बाद नहीं रोकते हो, कहते हैं कि नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता हमको, करते तो मैडम अभी शुरू में मैडम ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने बताया वैसा शुरू में जो उन्होंने बताया था, और मैं शुरू से सुन रहा। तो मेरा ये एट दिस एज देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी, बट ओनली 24 आवर्स आई एम गेटिंग दिस इरिटेटिंग पेन एट नमनेस, और मूंगी आती है रात को, सोने के बाद भी तकलीफ होती है। और आपने बोला वैसा डाइजेशन सिस्टम ये सब बिगड़ गया। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप एक्टिविटी नहीं कर सकते तो और जरूरी हो जाता है कि कोई चीज आप अगर ठीक कर सके अपने आप को, बैठ के कर पाए और ठीक कर लें अपने आप को। तो हमारे पास में ना 3 तरीके की चीजें हैं, जिसमें एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि बॉडी का मूवमेंट चाहिए होता, तो वो बाद में करें। पहले क्या करें, अंगन्यास होता है, वो बैठ के कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, कुंभक थेरेपी, बैठ के कर सकते हैं, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जब ठीक हो जाए तो वो तीसरा मर्म विन्यास कहते हैं या हठ विन्यास कहते हैं उसको, वो करना शुरू करेंगे। एकदम से आप देखेंगे कि जो भी आपकी एज हो, आपको अपने यंग दिन, जब यंग थे वो दिन याद आ जाएंगे। It will be very fine, sir. If it is happening, I will join your course. It is important that you become responsible towards your body first. जब तक जिंदा रहे ना, don't be dependent on anybody. Yeah, that is what my nature is like that only. I'm trying to be like that, but some limitations come because of this surgery.
But those, Well, I hope you, with your advice and your hearing after you, I hope this is really something it will become which I have much not much tried. better. Okay, आपको sir. you will not get limited to a confined to a particular bed or space. आप देखेंगे आप Yeah. घूम भी पाएंगे, और फिर जब ठीक हो जाएं तो जरा खूब अच्छे से इंडिया को घूमें, वहां पे तीर्थ हाँ, यात्रा वो भी तो करें और खूब अच्छी अच्छी जगह पे जाके मेरे घूमें और मिसेस अपनी का लाइफ को वही एंजॉय। कंप्लेंट रहता है कि वो आई कैन नॉट अकम्पनी, सो शी कैन नॉट ट्रैवल बिकॉज ऑफ मी. हाँ, That तो is अब what आप she एम्पावर कर like. लीजिए एंड देन स्टार्ट ट्रैवलिंग, एंजॉय son योर and लाइफ, daughter, स्टार्ट they are एंजॉयिंग योर लाइफ। they are abroad, but I am, because of this problem, I am not able to travel to them also sometime. सो ये आप ना- लोगों का वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई और सवाल हो अपने ग्रुप में पूछ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना? जी, sir. आप ये परेशान नहीं होना। हेलो मुझे शिफ्ट, मुझे जाना है किसी में, आप जल्दी से पूछ लो, जल्दी से पूछ लो। हेलो 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 एक स्वामी एक लेडी जो बोल रही है वो पूछेंगी। हेलो। हाँ बोलिए हाँ, बोलिए बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं बोलिए। भारती चौधरी बोकारो से बोल रही हूँ। हाँ जी, मुझे बोलिए। एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है और इम्यून सिस्टम जो है ना सर वो बहुत वीक है और मेरे पैर में सूजन है, तो उसके लिए मैं क्या कैसे करूं जो मेरा ये देखिए epilepsy का मैं problem बता ठीक हो जाए, दूं। तो हाँ मैं बता देता हूँ। पहली बात तो देखिए, एपिलेप्सी जो होती है ना, वो बॉडी जब बहुत रिस्क में आ जाती है। कई लेडीज एपिलेप्सी कब होती है? जब वो डिलीवरी हो, कि कोई डिलीवरी हुई, कोई बेबी हुआ, उसके बाद में कभी कभी ये इंसिडेंस शुरू हो जाता है। तो देखिए जब बॉडी के अंदर रिस्क बहुत होता है ना, तो एपिलेप्सी में एपिसोड जब होता है तो आप देखिए क्या होता है, आपके दांत ऐसे भिज जाते हैं, पूरा बॉडी टाइट हो जाता है और कांपने लग जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं? लगता है उसके आने हाँ, से पहले डर हाँ। लगता है बहुत। हाँ, तो उस समय आप क्या कर रहे हैं? अपने बॉडी को टाइट कर, वो डर जो है ना उससे अपने को बचा रहे हैं। तो आपके बॉडी के अंदर रिस्क है जिससे आप डर रहे हैं। कोई रिस्क है जिसको आप समझ नहीं पा रहे, उससे डर रहे हैं, तो बचाने के लिए वो एपिलेप्टिक अटैक आ रहा है। समझ लिए? एक बात समझा दिया हमने एक तरीके से। एपिलेप्सी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको मैं और समझाना चाहूं तो कई तरीके, मगर आसान से बोल रहा हूं, आसान तरीके से आपको समझ में कैसे समझ में आएगा। तो वो रिस्क कम कर देंगे तो एपिलेप्टिक एपिसोड्स कम हो जाएंगे आपकी लाइफ में, और रिकवरी फैक्टर बढ़ जाएगा। यानी कि एपिलेप्सी के बाद कई लोग जो होते हैं वो एक एक दिन लग जाता है उनको वापस, कभी कभी ज्यादा भी लग जाता है कि वापस नॉर्मल स्टेट में आने में। मगर हमने देखा है कि कुंभक जो करता है वो विद इन फ्यू मिनट्स वो वापस रिकवर हो जाता है और एपिलेप्टिक एपिसोड्स कम हो जाते हैं। तो इसका और एग्जांपल मैं बताता हूं। कई लोग, जिन लोग को एंजाइटी होता है, एंजाइटी अटैक्स आते हैं, घबराहट जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं सिचुएशन के साथ में, ऐसे लोग जब कुंभक करना शुरू करते हैं तो ऐसे लोगों को एक और प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती, क्योंकि उतना जबरदस्त पकड़ा हुआ है शरीर को कि नींद नहीं आ रही। जब छोड़ेंगे नहीं शरीर को तो शरीर आराम कैसे करेगा? तो ऐसे भी लोग हैं जिनको नींद नहीं आती और खूब सारी दवाइयां खाते थे, और कुंभक करने के बाद दवाई छूट गई, नींद आने लग गई। डिप्रेसिव केसेस, बाइपोलैरिटी के केसेस, ठीक है ना, डिप्रेशन के केसेस, जो कि डिप्रेशन की दवाई लेते थे, दवाई छोड़ के आराम से सो रहे हैं और नॉर्मल जी रहे हैं, उनके अपने ऊपर कंट्रोल आ गया है। अपने ऊपर कंट्रोल आप कैसे करते हैं? सांस रोक के ही करते हैं। जब डरावनी मूवी आप देख रहे हैं, डर लगता है, तो सांस रुकती है कि नहीं रुकती? जब आप ऊपर से गिर रहे हैं नीचे तो आपकी सांस रुक जाती है। जब आपको कोई मुक्का मारना चाहता है, अपने को बचाना चाहते हैं, तो सांस रोक के शरीर को टाइट कर लेते हैं ना। तो आप कभी भी खतरे से कैसे बचाते हैं अपने को? सांस रोक के अपने शरीर को टाइट कर देते हैं। एपिलेप्टिक अटैक भी वही है, वहां पे कुंभक हो रहा है, सांस रुक रही है, कुंभक से आपका शरीर आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अदरवाइज वो नहीं बचा पा रहा था। तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आपका कम करके, या फिर आप अवेयरनेस कम करके, वो खुद ही ले लिया उसने अपने हाथ में। आप नहीं कर पा रहे जो चीज, वो आपका शरीर खुद अपने हाथ में लेके अपने को बचाने की कोशिश करता है। तो ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी जैसे, कुंभक की कैपेसिटी जैसे ही आप बढ़ाएंगे, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा कि गई, एंजाइटी गया, कॉन्फिडेंस आ गया, मेंटल क्लैरिटी आ गई। जो मेमोरी लॉस हो रहा था, मेमोरी लॉस अभी याद रहने लग गई, चीजें समझ में ज्यादा आने लग गई, इंटेलिजेंस बढ़ गया, डर नहीं लग रहा। डर नहीं लगेगा तो एपिसोड्स कम हो जाएंगे, पहली बात ये। दूसरी बात, जब भी आप अपने बॉडी को स्ट्रेंथन करने की तरफ में जाते हैं
तो उसकी वजह से जो भी आपके बॉडी पे नुकसान हुआ है वो रिकवर हो जाता है। तो आप क्या देखने को मिलेगा कुंभक करने के बाद, अब क्या देखने को मिलेगा कि अटैक आया और आपको कुछ ही समय लगा, आप वापस रिकवर, वापस बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। तो ऐसे धीरे धीरे करके एम्पावर करते जाएंगे तो आफ्टर सम टाइम वो अटैक के ड्यूरेशन यानी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी और एक ऐसा टाइम आएगा जब आप पूरे तरीके से एम्पावर हो जाएंगे तो ये अटैक बंद हो जाएगा। दूसरी बात स्वामी ये, जी थोड़ा सा एक मिनट, हाँ स्वामी जी बोलिए। एक क्वेश्चन और, जैसे कि कुंभक जो हम शुरुआत करेंगे तो स्वामी जी जैसे उसमें सुबह में फ्रेश हो करके उसके बाद सांस खींच करके जो हम सांस को रोकते हैं नहीं नहीं अंदर, नहीं 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 नहीं, ये मत समझिए। कुंभक जैसे मैंने बताया, कुंभक बहुत बड़ा आयाम है। केवल सांस को रोकने का नाम ही कुंभक नहीं होता। ये एक तरीके से इसको समझाने के लिए मैंने एक कड़ी पकड़ के समझा। जब आप फोकस करते हैं तभी आप कुंभक कर रहे हैं। अपनी याददाश्त आपने कहां पे रोक रखा? कौन से शरीर के हिस्से में याद है आपको याददाश्त रोक रखी? तो वो भी याददाश्त को रोकना, कर्म को रोकना भी कुंभक के जरिए होता है। याददाश्त को रोकना भी कुंभक के जरिए होता है। ये पूरी प्रकृति कुंभक पे चल रही है, पूरा यूनिवर्स फॉर्म कुंभक पे होता है। यूनिवर्स का बनने का तरीका भी जो है उसे केवल कुंभक कहते हैं, जिसको हम शिव तत्व कहते हैं। शिव तत्व भी कुंभक तत्व है। तो ये बहुत बड़ा आयाम है। लेकिन हाँ, आपको जो बताया जाएगा उसमें सांस को रोकना, फोकस, हम साउंड को भी इस्तेमाल करते हैं कुंभक करने के लिए। तो कई तरीके से आपको वो बताया जाएगा कहां पे फोकस करना है, किस जगह को टाइट करना है, शरीर के किस हिस्से को थोड़ा टाइट करना है, सांस को कितना लंबा खींचना है, कितना रोकना है, कितना छोड़ना है, फोकस कहां रखना है, बॉडी का मूवमेंट, पोस्चर कौन सा रखना है ऐसी स्थिति में, है ना। तो वो आपको प्रोग्राम में आएंगे ना तब आपको पता चलेगा। ये केवल सांस को लेके रोकने कुंभक नहीं होता, ठीक है ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। वो आपको मैंने बताया कि वो भी कुंभक होता है, बट उसके अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठ के नहा धो के फ्रेश होके जाके सांस रोकना शुरू कर दें। सांस रोकना ज्यादा अगर शुरू करेंगे तो कई लोगों के पेन फैक्टर्स बढ़ जाएंगे, कई लोगों को लगेगा अरे ये क्या हो गया, ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया। इसीलिए गाइडेड प्रैक्टिस चाहिए, है ना, गाइडेड प्रैक्टिस इसीलिए चाहिए। इसीलिए आपको एक प्रोग्राम में डाला जाएगा, एक एक स्टेप करके प्रिपेयर किया जाएगा, तब कस्टमाइजेशन किया जाएगा। तो आप लोगों का वेबिनार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों की लाइफ में खूब स्वास्थ्य हो, खूब सुंदरता हो, खूब खुशी हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। Thank you so much to all the participants and Swamiji for joining in. Stay well, stay healthy. आपका और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्लास व्हाट्सएप वेबिनार ग्रुप में लिख सकते हो। Thank you. Signing off, Rachna.